Well, on the first day of his visit to Srinagar, the Union Home Minister Rajnath Singh met various delegations of civil society groups at the Nehru Guest House today. And Rajnath Singh is on a two-day visit to Srinagar to review the current situation in the Kashmir region in the aftermath of the protests and violence. Let's look at this report. Immediately upon reaching Srinagar, Rajnath Singh met various delegations of civil society groups to seek their feedback on the ongoing situation. Later in the day, Home Minister met Jammu and Kashmir Governor N.N. Vohra and Chief Minister Mehbooba Mufti, where he took stock of the overall situation with the security and administrative officials. This is Home Minister's second visit to Kashmir in 1 month. Minister of State in Prime Minister's office Dr. Jitendra Singh has said that the government and Prime Minister have assured to cooperate and help the state government in bringing back normalcy in the state. वहाँ के नौजवान जो अब जागरूक हो चुके हैं उन्हें थोड़ा सा समझाया जाए कि भारत जिस तरह से मुख्य धारा में चल कर के एक विकास की तीव्र यात्रा पर निकल पड़ा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसका पूरा लाभ देश के इस क्षेत्र को भी मिलना चाहिए, युवाओं को भी मिलना चाहिए। और वो अलगाववादी लोग जो इन युवाओं को गुमराह करके तथाकथित सो कॉल्ड जिहाद के नाम पर इनकी बलि चढ़ाते हैं, उनसे ये प्रश्न होना चाहिए कि यदि इतना ही महान धर्म का काम है तो क्यों नहीं वो अपने बच्चों को इस धर्म के कार्य के लिए आगे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए लाते हैं। Chief Minister Mehbooba Mufti today met families of the victims of violence in Kupwara district and assured them of all possible help from the state government, hitting out at elements who were glorifying the killings in Kashmir and playing politics over graves. Chief Minister said they never bothered to look back at the victims' families and sought public cooperation to end violence in the state. The Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Nirmal Singh, has said that the ongoing violence and unrest in the valley is Pakistan-sponsored and termed it as a part of a large conspiracy. समझिए तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही है, आईएसआई है, पूरा था, वो डेस्परेट हो गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ तक आए और चाइना की इंटरवेंशन हुई, तो ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी। और जिस प्रकार की केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके यहाँ की डेवलपमेंट जहाँ के लिए काम कर रहे थे, तो उसको लोगों को पच नहीं रहा था कि किस प्रकार से ये सरकार यहाँ बन गई और कैसे ये अच्छी सरकार चल रही है। उसके कारण जो सारा था तो वो सारा स्पॉन्सर्ड था। बाकी ऐसे एलिमेंट्स तो यहाँ हैं जिनको जो है उन्होंने इंस्टिगेट करके जिस प्रकार से उनको यूज करके तो उन्होंने किया है। Meanwhile, curfew has been lifted from Bandipora, Baramulla, Budgaon and Gandarbal districts and some parts of Srinagar city in view of the improving situation in these areas. Curfew remained imposed in 6 police stations of Srinagar and in the towns of Anantnag, Pulwama and Kulgaon. Bureau Report, DD News. And for an update on the situation in Kashmir, we are joined by our correspondent Ajay Vikram Singh, who is joining us from Srinagar. Well, Ajay Vikram, just tell us, curfew has been lifted in a few places, Bandipora, Baramulla, Budgam and Gandarbal districts. What is the current situation like in terms of Srinagar itself, and when is curfew likely to be lifted there? जी बिल्कुल मार्क, मैं बताना चाहूँगा कि आज गृह मंत्री से जिस तरह से प्रतिनिधि मंडलों की मुलाकात के बाद शाम को वैली के लगभग सभी ज़िलों से कर्फ्यू हटा लिया गया, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम को छोड़कर। इसके साथ ही श्रीनगर के 6 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर कर्फ्यू रहेगा। बाकी 4 जगहों से श्रीनगर के भी कर्फ्यू हटा लिया गया है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कमोबेश लगभग कई जगहों से घाटी के कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन धारा 144 सभी जगहों पर लगी रहेगी। 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इस लिहाज से अगर हम देखें, जिस हिसाब से गृह मंत्री की आज विजिट थी, काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ स्थितियां ज़रूर सुधरेंगी और शाम को ऐसी खबर आई है। इसके साथ ही ये भी खबर है कि कल जो पोस्टपेड फ़ोन्स हैं उनको भी शुरू कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। प्रीपेड फ़ोन को फिलहाल बंद रखा जाएगा। हो सकता है कल इसकी भी घोषणा हो जाए। इसके साथ ही मार्क, आज गृह मंत्री की जो विजिट थी वो काफ़ी अहम रही। करीब 15 प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात किया गृह मंत्री से। गृह मंत्री ने काफ़ी समय देते हुए करीब 6 घंटे मुलाकात की अलग अलग लोगों से, जिसमें सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था है इससे जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मौजूद थे। कश्मीरी पंडितों का भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया हुआ था।
कल मीटिंग होगी राजनेताओं से, लीडर्स से, और उसके बाद जिस तरह की ऑल पार्टी मीटिंग में डिमांड की गई थी कि यहाँ की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसका हल निकालने के लिए यहाँ के आम कश्मीरी को शामिल करना होगा, यहाँ के लोगों को शामिल करना होगा, उसमें एक कोई बहुत अच्छी खबर जरूर आ सकती है, इसकी उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ की स्थितियां थी, आज कर्फ्यू हटने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि वैली फिर अपने धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट आएगी, यहाँ की जो आम जनजीवन है। जी Right. Also, Ajay Vikram, tell us about essential services. Because there's been curfew for such a long time. What about essentials like milk products, food, things like that? Are they made available easily for the people now? हाँ जी, बिल्कुल भार्गव, जबकि कर्फ्यू हट गया है तो अब कल लगभग सभी दुकानें खुल जाएंगी और लोगों की जो आम जनजीवन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकेंगी। इसके साथ ही साथ इसके पहले भी हालांकि कर्फ्यू 15 दिन रहा, लेकिन शाम के वक्त कर्फ्यू में कुछ ढील दी जाती थी और रात के बाद और सुबह 5 बजे तक लोग सब्जियां, फल और दूध की खरीदारी कर सकते थे। खासतौर से सुबह 5 बजे तक इतनी छूट दी जाती थी। लेकिन जो परिस्थितियां बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो जाया करती थी, इस वजह से दिन का कर्फ्यू काफ़ी टाइट रखा जाता था। लेकिन अब चूंकि स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं तो अब लगता यह है कि कल से पूरा जो भी जनजीवन है वो सामान्य हो जाएगा। स्कूल, ऑफिसेज और जो बैंक हैं वो खुल जाएंगे और लोगों का जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। जी मान। Ajay Vikram Singh, thank you very much for joining us from Srinagar.